Okay, so 18 people. So I guess I should start now because time is running and I think we should start because it will get late. Hmm. Okay, I am recording the lecture as well. So after the lecture, we'll provide you that recorded video. So if anybody is having some sort of doubts or issue, you can refer that video. Okay. Okay. So I am sharing now. Is everybody able to visible see the screen? Is my screen visible to everybody? Yes, sir. Okay. Okay. So hello guys, myself Atharva Inamdar. Okay. uh, I have been passed out my B from Datta Mege College of Engineering. Okay. I am a mechanical engineer. I have experience of working in industrial areas. I have been working in the field of machine design. Okay. So from past 4 years, I have been working in the field of machine design as well as teaching. Okay, so I'll be going to conduct the physics part 1. Okay, physics is divided into two parts. Okay, I'll be going to conduct physics part 1 of you. Okay, screen is blur. Okay, that's due to the net issues. There are some net issues, network issues. Please make sure that your net is very strong. Your Wi-Fi is little strong. थोड़ा नेट इशू हो सकता है. Too much less. What is too much less? Mm, okay. Okay. Guys, please let me know. Yes. Everybody is able to see my photo. Okay. Hello guys, I'll introduce myself. Okay. Again, my name is Atharva Inamdar. Okay. I have been passed my B from Datta Mege College of Engineering. Okay. From past 4 years, I have been working in machine design field. Machine design as well as teaching field. Okay. So I'll be taking your physics part 1. Okay. So what sound is not coming? Arey, why so? Please check your sound. Please check your sound. Okay. Device sound, is it full or not? Please check. Yes. So I'll be taking your physics part 1. So should we continue? Is everybody audible to me? Is my voice is audible to everybody? We are recording the lecture as well. Okay, we are recording the lecture as well. So don't worry at all. Okay, okay, okay. So let's start with the journey of physics. Okay, see, I'll just give you an overview of the physics. Okay. So what is physics, sir? Sir, हम लोगों ने साइंस तो पढ़ा है, साइंस 1, साइंस 2, साइंस 3, बट व्हाट इज फिजिक्स? ये फिजिक्स होता क्या है? ओके. सो हम लोगों ने अभी इधर 11th स्टैंडर्ड में आते आते बहुत सारे सब्जेक्ट्स सुने सर. फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है. यस. So according to me, physics is nothing but a language. Okay, physics is a language. Okay, it is a language of nature. ये एक नेचर का लैंग्वेज है जिसको हमें समझना है. ओके. हमको क्यों समझना है सर नेचर का और हमारा क्या संबंध है? यस, इट इज अ वेरी बिग रिलेशन. ओके. हमारा और नेचर का एक बहुत बड़ा रिलेशन है. वी हैव टू बी एवरी टाइम विद द सराउंडिंग. ओके. सो अगर सराउंडिंग में रहना है, सराउंडिंग में अच्छे से रहना है. ओके, आई विल मेक द स्टेटमेंट वेरी क्लियर. अच्छे से रहना है. सो उसके लिए वी नीड टू स्टडी द सराउंडिंग. हमको सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है उन सब चीज को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. ओके. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव डिवाइडेड द साइंस इन 3 पार्ट्स. ओके. सो फर्स्ट पार्ट इज द फिजिक्स. ओके. फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स बोलता है मैं आपको नेचर सिखाऊंगा.
नेचर क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। ओके, केमिस्ट्री ने क्या बोला? केमिस्ट्री ने बोला भाई मैं छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, छोटे नहीं माइक्रो लेवल पे सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा ये सिखाऊंगा। ओके, मैथमेटिक्स क्या बोला? मैथमेटिक्स बोला कि भाई आप लोगों को मैं अच्छे से एक लैंग्वेज दूंगा। ओके, नंबर्स का लैंग्वेज, आप अलग अलग फिनोमिनास के बीच में कंपेयर कर सकते हो, ये मैथ्स ने बोला। और बायोलॉजी बोला, बायोलॉजी ठीक है चलो आप लोगों ने इतना किया, मैं लिविंग का या लाइफ का, जिसमें भी लाइफ है वो मैं देख लूंगा। ओके, सो हम लोग अभी दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ साइंस। ओके, हम लोग सो अभी वो पढ़ेंगे। सो शुड वी स्टार्ट? नॉट एबल, नॉट ऑडिबल, ओके, अनेबल टू हियर। Guys, is my voice audible or it is breaking? Please let me know. Yes, it is breaking. Yes, guys, the voice is breaking due to some network issues. Please make sure आप लोग अच्छे से network में हो. Not able to hear. Please continue. Now able to hear. Okay. So this is a network issue. So please अगर बीच में अगर कुछ हो जाएगा तो don't worry. डोंट वरी, प्लीज चेक योर ऑडियो। आप सब लोग आपका नेटवर्क और ऑडियो एक बार प्लीज चेक करो, क्योंकि उसके वजह से ही प्रॉब्लम है। द वीडियो इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, सो आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? प्लीज लेट मी नो, यस नो, शुड वी स्टार्ट? Yes, yes, yes. Okay, so we'll start with the video, right? So I am welcoming everybody. Okay.
यस, सो कैसा लगा वीडियो गाइज? हाउ वाज द वीडियो? गाइज प्लीज लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो. किसी को आवाज ज्यादा नहीं सुनाई देगा, बट किसी को Amazing. यस दिखा रहेगा. व्हाट इज फिजिक्स? हाउ इज फिजिक्स? फिजिक्स हमारे लिए कैसा है, राइट? सो दैट वाज सम बेसिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. ओके, फिजिक्स एक्चुअल में है क्या, फिजिक्स हमारे लिए है क्या, और हम लोग फिजिक्स कैसे करेंगे आगे, ये सारी चीजें हमको अभी देखनी है. ओके, सो स्क्रीन पे अभी सबको दिख रहा रहेगा वेटेज ऑफ फिजिक्स इन वेटेज ऑफ फिजिक्स इन एकेडमिक्स. प्लीज प्लीज आप सब लोग अपना वॉइस ऑडियो जो है प्लीज बंद कर दीजिए. ओके, so let's see some information about physics in your academics. Okay, so in academics physics consists of 70 marks. आपका एंड सेमिस्टर जो होगा वो 70 मार्क्स होगा, बाद में 30 मार्क्स आपका इंटरनल होगा फॉर ओके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड बोथ. ओके ओके, इसके बाद जब आप 12th स्टैंडर्ड दोगे तो देयर विल बी वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स. ओके, तो उसमें से एक सीईटी है, MHT CET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ओके, सो उसमें पेपर वन में, ओके, पेपर वन में 50 मार्क्स के लिए फिजिक्स होगा, 1 मार्क ईच. ओके, नो नेगेटिव मार्किंग. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू अबाउट हाउ एकेडमिकली फिजिक्स इज गोइंग. ओके, जो लोग अभी जेई के लिए ट्राई कर रहे हैं, सब लोगों को पता रहेगा IITs. ओके, IIT रहती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, दे आर कंसिडरिंग ओनली एंड ओनली द रिजल्ट्स ऑफ जेई. ओके, so JEE exams में, see there are two exams of JEE. One is JEE mains and JEE advanced. Okay, this is of this is of mains. There will be 25 questions, and in that 20 questions आपको 25 questions, 20 questions आपको MCQ होंगे. Okay, there will be multiple choice questions. So आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें आंसर्स के लिए ऑप्शन दिया रहेगा. You have to select one of the answer. Okay, that's known as multiple choice question. एंड 5 क्वेश्चंस विल बी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपको एक्चुअली सॉल्व करने पड़ेंगे. सो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर. ओके, सो यस, जेई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है. ओके, सो कुछ लोग बायो या मेडिकल फील्ड में जाने की भी कोशिश करेंगे. सो यस, उनको भी फिजिक्स है. यस, एज आई सेड, फिजिक्स इज एवरीवेयर. आप लोगों ने देखा रहेगा कहीं पे हॉस्पिटल में देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट आर वर्कड ऑन फिजिक्स. सो इवन दो यू आर गोइंग इन द बायोलॉजी फील्ड और मेडिकल फील्ड, ऐसा मत सोचो कि फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. फिजिक्स आपका अंत तक पीछा नहीं छोड़ने वाला. फिजिक्स आपको अंत तक रहने वाला है. सो ओके, सो फॉर नीट एग्जाम 45 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से सब MCQs होंगे. ओके, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड यस, नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Please tell me yes or no in the chat box. Okay, okay. So let's move ahead. Okay. So आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, फिजिक्स देयर आर वेरियस फादर्स ऑफ फिजिक्स. तो उसमें से सबका बाप, ओके, सबका बाप एक ही है. कौन है बोलो? जिसने लॉज ऑफ मोशन बनाया, सबका बाप एक ही आदमी है जिसने लॉज ऑफ मोशन बनाया. कौन था रे? तो उसका हिस्ट्री जानना चाहिए ना. तो उसने कौन था वो? यस, द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन. राइट, सो ग्रेट सर आइजैक न्यूटन, जिसने हमारा पूरा फिजिक्स का रूप ही बदल दिया. ओके, सो ही वॉज अ नेचुरल फिलोसोफर. उसको हम लोग फिजिसिस्ट बोल सकते हैं या मैथमेटिशियन बोल सकते हैं. He has done ample of work in the field of physics and mathematics. Okay, so but sir, उसको थोड़ी सपना गिरा था, कि भाई लॉज ऑफ मोशन बनाने हैं, लॉज आने वाले हैं, कैसे आएगा. यस, सो उसके पीछे भी देयर इज अ हिस्ट्री. ओके, सो वो हिस्ट्री जानना चाहते हैं सर हम लोग कि लॉज ऑफ मोशन बने कैसे. सो यस, आज का टॉपिक पता चल गया. वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ मोशन एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू द लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो प्लीज देखो अभी आगे क्या होता है. ओके, सो पहला इंसान था, ओके, एरिस्टोटल. सब लोगों ने हिस्ट्री में सुना रहेगा रे, एरिस्टोटल नाम का आदमी कौन था. ओके, सो दिस वाज अ ग्रेट ग्रीक थिंकर. ओके, ये बहुत सोचने वाला बंदा था. देखो, दिमाग भी बड़ा है, उसका सर भी बड़ा है, बहुत सोचता है. सो ये बंदे ने क्या सोचा? ये बंदे ने सोचा
और ऑब्जर्व किया कि जो बड़ी चीजें होती है, हैवी चीजें, वो उनकी जगह ही नहीं छोड़ती और जो लाइट चीजें होती है वो अपनी जगह छोड़ देती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन उसने क्या बोला कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज इट्स ओन नेचुरल प्लेस. ओके, क्या बोला उसने? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज इट्स ओन नेचुरल प्लेस एंड दैट थिंग ऑलवेज ट्राइज टू एक्वायर दैट प्लेस. ओके, उसने एग्जाम्पल क्या दिया? वो बोला बारिश होता है, रेन होता है, रेनिंग होता है, water always tries to fall down and via some channel it tries to network the tries to enter the water body. Okay, so he says that ki the rain molecules or the rain droplets has its natural place in the water body, so वो water body में ही जाएगा. Okay, बाद में उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग किसी चीज को बर्न करेंगे तो उसमें से स्मोक आता है, स्मोक के ऊपर जाता है. तो उसने बोला कि एयर का नेचुरल प्लेस है अबाउ द अर्थ सरफेस. ओके, एयर का नेचुरल सरफेस है या नेचुरल रीजन जो है या नेचुरल सोर्स जो है दैट इज अबाउ द सरफेस. सो दैट्स व्हाई स्मोक इज अ पार्ट ऑफ एयर, सो इट हैज इट्स नेचुरल प्लेस इन above the earth surface. That's why the smoke always flows upwards. ओके, ये एरिस्टोटल ने बोला. भाई इसकी थिंकिंग ही अलग थी, लोगों की थिंकिंग ही ऐसी नहीं थी, तो उसके वजह से ये भाई बहुत पॉपुलर होने को लग गया. ओके, सो उसने बोला कि भाई हैवी ऑब्जेक्ट्स गिरेंगे और लाइट ऑब्जेक्ट्स वो नहीं गिरेंगे. ओके, ये बंदा तो इतना था कि इसने हेवन भी बना दिया. बोला हेवन भी होता है. उसने अभी पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में तोड़ा. बोला एक अर्थली सिस्टम होता है, ओके, अर्थ सिस्टम, और एक होता है हेवन सिस्टम. वो क्या बोला? अर्थ में सारी चीजें वेरिएबल होती है. इंसान आता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है और मर जाता है. बट हेवन में सब कुछ कांस्टेंट होता है. तो इसीलिए वो बोला कि अर्थ पे सारी चीजें ऐसी ही होंगी कि जो जिस नेचुरल जगह पे है वो वही जगह एक्वायर करने की कोशिश करेगा. ओके, सो भाई उसके ऐसी थिंकिंग के वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गया यार. एकदम ऐसा पॉपुलैरिटी किसको मिलेगा? तो ऐसे ही अतरंगी थिंकिंग की वजह से वो बहुत बहुत पॉपुलर हो गया. तो भैया अभी जब जो भी आदमी एक बार सोचना चालू करे, उसको इंस्पायर होके कुछ और लोग भी सोचना चालू करते हैं, बोलते हैं यार हम लोग भी सोचेंगे, इसको चांस मिला, हमको भी मिलना चाहिए. सो इसके बाद में आया कौन था रे? निकोलस कॉपरनिकस. सब लोगों ने ये नाम सुना रहेगा बट किसी को पता नहीं रहेगा ये बंदे ने किया क्या है. ओके, सो निकोलस कॉपरनिकस को के बारे में बताने से पहले मैं ये भी बताऊंगा कि एरिस्टोटल एक बार ये भी बोला था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स, ओके, ऑल द प्लैनेट्स एज वेल एज सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ओके, सो उसने अपने ऑब्जर्वेशन से ये भी बोला था कि अर्थ क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और अर्थ के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट, सन, मून, जुपिटर, वीनस, जो भी प्लैनेट्स है वो घूमते हैं. ओके, सो भाई उसके वजह से वो फेमस हो गया. बट उसके बाद निकोलस कॉपरनिकस करके एक बंदा था. ओके, उसकी थिंकिंग के वजह से बेचारे एरिस्टोटल को प्रॉब्लम होने को लग गई. ओके, चेहरा देखो, निकोलस कॉपरनिकस. सो ये भाई ने क्या बताया? ये भाई ने बताया सर आपने जो बताया रेवोल्यूशन का सही है, एकदम सही है, बट आपने जो घूमने वाली चीज बताई ना वो गलत है. घूमने वाली चीज की असलियत यह है कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. ओके, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन. ओके, उसने ये बताया. सो भाई दिस इज द वेरी बिग थिंग. क्या बताया, कैसे बताया? तो इस थियोरी ने पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया. So this theory also introduced the concept of force. Okay, निकोलस कॉपरनिकस बोला कि भैया कोई तो फोर्स है जो इन प्लैनेट्स को गोल घुमा रही है. पता नहीं कौन सी फोर्स है बट यस देयर इज अ फोर्स. ओके, सो ये कंसेप्ट आया फोर्स का. ओके, सो इसी के बेसिस पे देखो इसने अभी लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से हेल्प नहीं किया. ओके, बट कुछ ना कुछ हिंट दिया. ओके, सो इसके बाद एक और बंदा जिसको हम लोग फेमसली बोलते हैं गैलीलियो. सब लोग को पता है टेलीस्कोप का इन्वेंशन ये बंदे ने किया था, राइट?
सो टेलीस्कोप का इन्वेंशन ये बंदे ने किया था। ये बंदा क्या बोला? ये बंदा बोला कि भाई सही बात है, बट एरिस्टोटल जो बोला वो सब गलत है। ये बोला कि भाई हेवी चीज हो या लाइट चीज हो, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगी। ओके, हेवी चीज हो या लाइट चीज हो, दोनों चीजें एक साथ ही गिरेंगी, प्रोवाइडेड दैट उसको कोई रेजिस्टेंस ना हो, उसको कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो भाई उसने एक्सपेरिमेंट किया, देखो अभी साइंटिस्ट है तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। तो उसने लिया एक मेटल बॉल और लिया उसने वुडन बॉल। ओके, उसने दोनों बॉल को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरा दिया। ओके, उसने दोनों बॉल्स को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया और नीचे आके खुद टाइम मेजर करने लगा, भाई कितना मिनट में दोनों बॉल नीचे गिरते हैं, पहले कौन आता है। सो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये चीज ऑब्जर्व की कि अरे मेटल बॉल होने दो या वुडन बॉल, दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, दोनों को टाइम सेम लग रहा है, कोई भी बॉल होने दो। तो वो बोला कि भाई एरिस्टोटल का थियरी गलत था। ओके, सो उसने बोला कि हर चीज को हम लोग वेट के हिसाब से या मास के हिसाब से नहीं देख सकते। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हर चीज इक्वल स्पीड के साथ या इक्वल इंटेंसिटी के साथ नीचे आएगी। सो यही वो बंदा था जिसने फर्स्ट नाम लिया मोशन का। तो यही वो बंदा था जिसने मोशन बनाया और यही वो बंदा था जिसने वेलोसिटी का नाम दिया। अभी सर वेलोसिटी क्या होता है? सब लोग गाड़ी चलाते रहे, बोलते रहे भगा भगा रे, 20 का स्पीड है, 50 का स्पीड है। तो ये स्पीड क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द मेजर ऑफ योर मोशन। आप कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हो, दैट इज द मेजर ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी जो है, हम लोग बोलते रहे इतना स्पीड है हमारा, मेरा स्पीड इतना है, गाड़ी का स्पीड इतना है, तो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। ओके, सो दैट इज मेजर ऑफ मोशन। सो उसके बाद में कुछ और थिंकर्स आए। तो उसके बाद में है रेने डिस्कार्टे। अभी आप सब लोगों ने ना इसका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पढ़ा है, बट आप लोग को पता नहीं रहेगा ये कौन है रेने डिस्कार्टे। ओके, रेने डिस्कार्टे कौन है रे? आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, सो ये वो बंदा है। ओके, ये वो बंदा है जिसने आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इसीलिए हम लोग इसके नाम पे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों इसका नाम मेरे डिस्कार्टे? कार्टे इसके नाम में ही है। सो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग उस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। बराबर है? सो भाई ये बंदे ने भी 2 लॉज दिए, पता है क्या? ये बंदे ने भी 2 लॉज दिए। इसने फर्स्ट लॉ दिया। फर्स्ट लॉ में क्या बोला? फर्स्ट लॉ में बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन रेस्ट it will be in rest, okay, or if it is in motion it will be in motion। okay, इसने अपने लॉ को नाम दिया लॉ ऑफ नेचर। ओके, सो लॉ ऑफ नेचर 1। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर उसने क्या बोला? any object if it is in rest it will try to stay in the rest, and any object if it is in motion it will try to stay in the motion। okay, सो उसने ये बताया। उसने सेकेंड लॉ भी बताया। सेकेंड लॉ क्या बताया? कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्राइज टू मूव इन द लीनियर स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन है सर सर्कुलर मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन कैसे स्ट्रेट लाइन में होगा? यस, सर्कुलर मोशन भी स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। कैसे होगा रे स्ट्रेट लाइन में सर्कुलर मोशन? बिकॉज सर्कुलर मोशन आप गोल तो घूमते हो, बट जब भी गोल घूमते हो आपको अलोंग रेडियस पहले बाहर जाना पड़ता है। okay, so along radius you have to go first outwards and then you start moving। so आप along radius तो linear जा रहे हो ना। so ये रेने डिस्कार्टे ने बताया। so रेने डिस्कार्टे ने जो स्टडी किया था उसी टाइम पे अपना जो न्यूटन था, ओके, जो अपना न्यूटन था वो 20 इयर्स का था और वो स्टडी कर रहा था। ओके, सो उसने उसी 20 इयर्स में बहुत सारी थियरीज दे चुके थे। बराबर है? न्यूटन साहब अपनी थियरीज बहुत सारी दे चुके थे। तो उसने ये स्टडी करते करते इसकी भी स्टडीज कर ली और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भाई ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बना दिया। सो इस तरीके से हमारे न्यूटन सर फेमस हो गए। सो न्यूटन सर ने पूरा फिजिक्स में रेवोल्यूशन ला दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स फेमस इन्वेंशंस। ओके, सो उसने 3 लॉज इन्वेंट किए। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि भाई क्या लॉज दिए भाई ने। ओके, हम लोग को पता है, बट आप लोग को पता है लॉज, दिस लॉज आर वेरी वेरी यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ। इंजीनियरिंग में बाय चांस आप गए तो इंजीनियरिंग में कितने यूज होते हैं पता है क्या?
बहुत यूज होते हैं, मार्क माय वर्ड्स। इन लॉस के बेसिस पे ही हर मशीन बनती है। आपका मोबाइल रहने दो या कोई बड़ी मशीन रहने दो, जेसीबी होने दो, कोई भी होने दो, एनी मशीन, ओके, एनी मशीन। इवन दो जो आप गन गन देखते हो, मूवीज में देखते हो, पुलिस वालों के पास देखते हो, दैट मशीन इज ऑल्सो मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ। हर चीज, हर मशीन न्यूटन लॉ पे चलती है। सो भैया, न्यूटन को हम लोग प्रणाम करते हैं और इस तरीके से वील स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट वेट। ओके, सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन भाई का पहला लॉ। व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, Newton's first law states that object tries to stay in the rest or in the state of motion unless and until it is acted upon by an unbalanced force। मतलब क्या रे, मान लो कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, ओके, यू आर सिटिंग इन अ वन प्लेस। जब तक आपको कोई आके हिलाएगा नहीं तब तक आप उधर ही बैठ जाओगे, राइट। सो जिस दिन कोई आपको आके हिला देगा आप मोशन में चले जाओगे, आप हिल जाओगे। सो न्यूटन ने यही बोला था कि हर ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास होता है, उसके पास एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट का मोशन रेजिस्ट करना मतलब क्या, आप बैठे हुए हो, आपको कोई हिला नहीं पा रहा है, ओके, आपको कोई हिला नहीं पा रहा है, आप बैठे हुए हो, ओके। जब तक कोई बड़ी फोर्स आके आपको मूव नहीं करती तब तक आप उधर ही बैठे रहोगे। क्यों? बिकॉज यू हैव मास, ओके, यू हैव मास एंड दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। ओके, तो सबसे बड़ी चीज होती है इनर्शिया। तो अभी देखो मैं एक प्लेन को लेके आता हूं और बीच में ही रोक देता हूं, तो बेचारा उड़ रहा है बीच में, रुक, देखो रोक दिया। सो प्लेन को मैंने रोक दिया, क्या हुआ, प्लेन मोशन में था, ओके। सो मोशन में था तो मैंने उसको रोक दिया, रोका तो वो रुका, बराबर है, रोका तो वो रुक गया। अगर मैं रोकता नहीं तो वो चला जाता, बराबर है। सो भाई आप प्लेन आप चले जाओ, आपका काम हो गया, ओके। सो वो गया, सो मैंने उसको बाद में बीच में रोका नहीं, राइट। सो आई हैवंट स्टॉप दैट प्लेन, सो ड्यू टू दैट इट हैज स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इट्स मोशन। उसने अपना मोशन कंटिन्यू रख दिया, ओके। अरे ये कौन गया बीच में से, लगता है आयरन मैन था। ये आयरन मैन क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो फिर देखते हैं आगे कि आयरन मैन क्या कर रहे हैं। सो लेट्स सी दिस और लेट्स गेट द फील ऑफ फर्स्ट लॉ बाय अ वीडियो। ओके, सब लोग प्लीज वीडियो देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गाइस 2 मिनट में यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। उसी वीडियो में उन लोगों ने बताया द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट। तो वो मास देख रहे हो, बहुत बड़ा पत्थर जो न्यूटन भाई हिलाने का कोशिश कर रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज वो बहुत बड़ा मास है, उसको बहुत बड़ा इनर्शिया है। सो उसको मूव करना है तो उतना ही बड़ा उसको फोर्स लगेगा, उतना ही बड़ा उसको फोर्स लगेगा। सो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन। देखो बच्चे ने बॉल को किक किया, तो अभी जब तक बीच में कोई बॉल को रोकता नहीं, बॉल हवा में ही रहेगा, मोशन ही करेगा। यस,
आगे देखे, सॉरी, देखा गाइज, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को रोकते नहीं वो अपने आप चला जाता है मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ओके, क्यों? बिकॉज देर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, सो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, राइट? सो देखो, उसमें उन लोगों ने बताया देर इज नो फ्रिक्शन। अभी हमारे यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, सो सब चीजें अगर उसको नीचे खींचेगी, अगर ये सब नहीं होती तो हम लोग भी स्पेस में उड़ जाते। बट हम लोग को बचा के रखा है किसने? न्यूटन की मेहरबानी, ग्रेविटी ने। तो देखा, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रुक गया। ओके, सो नेचर में हमारे पास इनर्शिया है, बट अगर फ्रिक्शन और ग्रेविटी नहीं होता तो अगर मैं किसी बॉल को किक भी कर देता वो भाई दूसरे प्लेनेट पे जाके गिरता, क्या पता वो मार्स पे गिर जाए या मून पे गिर जाए। बट यस, थैंक्स टू ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन हम लोग यहाँ पे अर्थ पे सेफ है। ओके गाइस, तो देखा जरा न्यूटन और बच्चे ने झगड़ा कर लिया, क्यों भाई? बहुत न्यूटन ने परेशान किया।
तो चलो हम लोग नेक्स्ट लॉ के ऊपर बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ। के सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force। अभी सर ये मोमेंटम क्या है, आप क्या बोल रहे हो, हम लोग को नहीं समझ रहे। सो मैं समझाता हूं। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप लोगों ने अपने लोअर स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या बताता है? मोमेंटम आपका मोशन बताता है कि आप कितने स्पीड में हो या कितने स्लो हो। सो आपको एग्जांपल देना है। अरे इसके बीच में, अरे हमारे आयरन मैन आ गए यार। आयरन मैन क्या बोलना चाह रहे हैं? थैनोस भी आ गया। क्या चल रहा है ये? सो आयरन मैन देखो क्या बोल रहा है, आई विल टीच यू द न्यूटन सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ आयरन मैन अभी सिखाएंगे। तो देखो आयरन मैन कुछ कर रहे हैं यार, कुछ तो हो रहा है। अरे बाप रे, थैनोस को उड़ा ले गए। सो न्यूटन सेकेंड लॉ आयरन मैन ने हमको ऐसे टीच किया कि बोला भाई देखो थैनोस रेस्ट पे था, सो अगर मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया तो वो भी उड़ जाएगा। सो कैन आई से उसका इनिशियली मोमेंटम कुछ और था, मैंने उसका मोमेंटम ही चेंज कर दिया। सो मोमेंटम चेंज किया मतलब क्या किया? मैंने फोर्स अप्लाई किया, बराबर है। सो भाई जाओ आप आयरन मैन, हमको अभी पढ़ने दो। सो यस, to explain this there is a video again, Newton's second law of motion। प्लीज देखो सब लोग। देखो गाइस वीडियो में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? एक्सप्लेन यही करना चाह रहे हैं कि अगर आप
कम फोर्स से पुश करोगे, तो देखो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हो, अगर कम फोर्स लगाया तो वो फटाफट मूव नहीं होता या एक्सेलरेट नहीं होता। अभी एक्सेलरेट क्या होता है, सब लोगों ने गाड़ी चलाई है या गाड़ी देखी है, उसमें एक्सेलरेटर रहता है। अगर एक्सेलरेट किया तो फटाफट आगे जाती है ना। वैसे ही अगर कम फोर्स लगाओगे तो वो कम एक्सेलरेट होगा। अभी देखो दूसरी जगह पे घोड़े के पास ज्यादा पावर है, बराबर है, तो वो ज्यादा फोर्स लगाया, तो उसने अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो वो ज्यादा एक्सेलरेट का मतलब क्या, फटाफट आगे गया। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। यस, सो हेंस यहां पे हमको पता चला जैसे मेरा फोर्स बढ़ेगा वैसे ही मेरा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ओके, सो जैसे मैं फोर्स अपना बढ़ाऊंगा वैसे ही उसका मोशन फास्ट होते जाएगा। देखा, तो क्या बोलना चाह रहे रे कि अगर मास भी बहुत ज्यादा रहेगा, कोई चीज का मास भी बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको हमको पुश करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर मास कम रहेगा तो मास हम लोग फटाफट पुश कर सकते हैं, बराबर है। उसने न्यूटन भाई दुबला पतला सा था, उसने तो फटाफट पुश किया। बट घोड़ा है, घोड़े का मास बहुत बड़ा है, तो वो टाइम लेगा थोड़ा पुश करने के लिए। सो फोर्स इज प्रपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज प्रपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ओके, सो अभी देखो क्या बनता है। सो हेंस न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो कोई भी चीज को अगर आपको फोर्स लगाना है तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका मास कितना है। ओके, मास तो मिल गया सर, मास तो मिल जाएगा वेइंग स्केल पे रख के, हम लोग वजन कांटे पे रखते हैं ना, वैसे ही एक्सेलरेशन वो भाई हमारे हिसाब से। अगर हमको फटाफट आगे मूव करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फटाफट अगर स्लोली मूव करना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। गाइस, तो सेकेंड लॉ क्लियर है क्या सबको? एनीबडी हैविंग डाउट? No. ओके, सो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं सर। क्यों बता रहे हो? यस, क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दिस ऑल लॉज इन डिटेल। मेरे को ये सारे लॉज डिटेल में जानने हैं। सो डिटेल में जानते हैं। देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, ये सबको पता है, ये सब लोगों ने देखा है। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल क्या, आप बॉल को नीचे बाउंस करते हो। सो इफ यू आर बाउंसिंग द बॉल, बॉल नीचे जाता है एंड देन अगेन ऊपर आता है, बराबर है। सो उसके लिए, अरे भाई थैनोस फिर से आ गए। अभी थैनोस को मारने के लिए कौन आ रहे, राइनो आ गया भाई। राइनो टकरा के फिर से चला गया। सो कैन आई से राइनो हैज अप्लाइड सम एक्शन एंड एज थैनोस इज वेरी रिजिड, ओके, सिर्फ इसको आयरन मैन ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता, तो फिर से बाउंस होके पीछे हो गया। तो भाई थैनोस आपका काम हो गया, आप भी चले जाओ। सो यस, देयर इज अ वीडियो ऑन दिस।
देखा गाइस, अभी उन लोगों ने क्या बोला कि उन लोगों ने बोला भाई न्यूटन चेयर पे बैठ गया. नाउ चेयर ऑन चेयर न्यूटन इज अप्लाइंग सम फोर्स. ओके, सो ऑन द कॉन्ट्रेरी चेयर इज ऑल्सो अप्लाइंग सम फोर्स टू न्यूटन. सो इसीलिए चेयर टूटा नहीं या न्यूटन टूटा नहीं, दोनों नहीं टूटे. तो भैया the Newton's law, third law states that every action has an equal and opposite reaction always. Okay, आगे देखते हैं. देखा, अगर चेयर ने रिएक्शन नहीं दिया होता, उसके एक्शन को रिएक्शन नहीं दिया होता तो चेयर टूट जाता भाई, न्यूटन गिर जाता. तो गिर गया. देखा, उन लोगों ने क्या बताया रे, बर्ड इज ट्राइंग टू पुश द एयर मॉलिक्यूल्स एंड इन कॉन्ट्रेरी एयर मॉलिक्यूल्स आर पुशिंग द बर्ड अपवर्ड्स. ओके, सो इस प्रकार से बर्ड फ्लाई करता है एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल के ऊपर. आप लोग को पता है कि जिन जिन लोग स्विमिंग करते, स्विमिंग भी एक्शन रिएक्शन के ऊपर होता है. आप पानी के मॉलिक्यूल को पुश करते हो, पानी का मॉलिक्यूल आपको ऊपर पुश करता है. सो दैट्स हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ गेट्स अप्लाइड. यस, सो गाइज समझ में आए क्या तीन लॉज? प्लीज यस और नो चैट बॉक्स में डालो, यस और नो. सिंपल लॉज थे बट हम लोग को उसका एप्लीकेशन जानना है, राइट? सो यस, दे हैव एप्लीकेशंस. ओके, सबको समझा है? Yes. ओके, वेरी गुड. Yes. ओके, वेरी गुड. ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस. ओके, डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने सबने अप्लाई किए, किसी को पता नहीं रहेगा बट यस सबने अप्लाई किए. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन. फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या दिया रे? फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री. ओके, कभी आपको कोई चीज, देखो आप कभी बैडमिंटन खेलते हो, तो बैडमिंटन खेलते खेलते वो जो शटल कॉक होता है ना, वो झाड़ पे अटक जाता है, तो आप क्या करते हो? पेड़ को जोर जोर से हिलाते हो. तो पेड़ को हिलाने के बाद दैट शटल कॉक फॉल्स डाउन. क्यों? बिकॉज न्यूटन क्या बोलता है रे, आप किसी भी चीज को अगर मोशन देने का या मोशन छीनने का कोशिश करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा. सो सिमिलरली अगर आप किसी पेड़ से कोई फ्रूट निकालना चाहते हो तो उसको जोर जोर से हिलाओ, देखो कितने फटाफट फ्रूट गिरते हैं. वाई? बिकॉज द ट्री इज इन मोशन बट द फ्रूट इज अपोजिंग द मोशन. फ्रूट मोशन को अपोज कर रहा है, तो उसके वजह से फ्रूट हिलता नहीं है. और फ्रूट का जो स्टेम रहता है ना, स्टेम वो बहुत पतला रहता है, तो टूट जाता है. तो वो टूटने की वजह से फ्रूट नीचे गिर जाता है, राइट? ओके, एक और एग्जांपल है, सब लोगों ने देखा रहेगा, ये किया भी रहेगा, डस्टिंग ऑफ कारपेट. अगर आप कारपेट को डस्ट करते हो तो डस्ट क्यों निकलता है बाहर? कभी सोचा है किसी ने डस्ट क्यों निकलता है बाहर? यस, तो डस्ट इसके लिए निकलता है कि आप कारपेट को मोशन में लाते हो बट डस्ट पार्टिकल्स मोशन में आना रेजिस्ट करते हैं. सो वो रेजिस्ट करने की वजह से बाहर निकलते हैं. ओके, ये लास्ट एग्जांपल सब खेल चुके, कैरम. अगर आप कैरम में हर पीस को
टावर जैसा खड़ा करोगे, वन पीस ऑन अनदर पीस, और आप सबसे नीचे वाले पीस को अगर स्ट्राइकर से मारोगे तो पूरा टावर नहीं गिरता, सिर्फ नीचे वाला पीस गिरता है. क्यों ऐसा होता है? वाई? बिकॉज द अदर बॉडीज और द अदर पीसेस ट्राइज टू रेजिस्ट द मोशन. वो मोशन को रेजिस्ट करने का कोशिश करते हैं. तो इसीलिए न्यूटन्स लॉ बोलता है एवरीबॉडी ट्राइज टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ. ओके, तो सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन क्या है? देखो, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है. ओके, रेज्ड हैंड, किसी ने तो हैंड रेज किया. लेट मी सी. किसी को डाउट है? ओके, सो सॉफ्ट कुशनिंग फ्लोर फॉर हाई जंप. अभी ये जो अपने कोई लोग स्पोर्ट्स देखते होंगे, तो स्पोर्ट्स देखने वाले देखिए, हाई जंप का जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर वो बहुत सॉफ्ट होता है. सॉफ्ट होने की वजह से वो बेचारा जो बंदा है वो जमीन पे गिरता है ना, तो गिरने से उसको कोई डैमेज नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पीड से आता है. सॉफ्ट कुशन क्या करता है रे? सॉफ्ट कुशन उसका स्पीड, जैसे ही वो ग्राउंड को टच होता है, कुशन को टच होता है, उसका स्पीड वो कम कर देता है. सॉफ्ट कुशन उसका स्पीड कम कर देता है. तो कैन आई से इट इज रेजिस्टिंग इट्स मोमेंट. सो अगर मोमेंट चेंज हो गया, उसका मोमेंट चेंज हो रहा है, और वो भी बहुत स्लोली नीचे जाता है. देखो, फटाक से नीचे नहीं जाता, तो स्लोली नीचे जाता है. तो हमारा न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? चेंज इन मोमेंट पर यूनिट टाइम. तो अगर मेरा टाइम ज्यादा है और मोमेंट कम है, तो कैन आई से मेरे को फोर्स भी कम एक्सपीरियंस हो रहा है. कैन आई से मेरे को फोर्स भी कम एक्सपीरियंस हो रहा है. जो जो हाई जंप करता है ना, तो हाई जंप वाले को लगता नहीं है. अगर उसी के जगह पे कंक्रीट का बेस होता तो भाई उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती, सिर या तो बैक, दोनों फ्रैक्चर हो जाता. क्यों? बिकॉज उसमें उसकी फोर्स रेजिस्ट ही नहीं होती, उसकी मोमेंटम रेजिस्ट ही नहीं होती. बराबर है. सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आप कभी भी अभी क्रिकेट खेलते होंगे, स्पेशली बॉयज. जब आप क्रिकेट खेलते हो तो फटाक से बॉल नहीं पकड़ते हो. बॉल पकड़ के आप हाथ को पीछे मूव करते हो. वाई? बिकॉज यू आर डिसेलरेटिंग दैट बॉल. आप उस बॉल को धीमे से डिसेलरेट करते हो. अगर फटाक से ऐसा हाथ सामने ला दिया बॉल के, तो क्या होगा? अरे हाथ को लग जाएगा यार, बॉल हाथ को लग जाएगा. तो उसके वजह से हम लोग उस बॉल को हाथ से पीछे लेते हैं. क्यों डिसेलरेट करते? डिसेलरेट करते मतलब क्या है? उसका मोमेंटम चेंज करते हैं. तो मोमेंटम चेंज हुआ ज्यादा से ज्यादा टाइम में, तो फोर्स भी कम लगता है. ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ का एग्जांपल तो सबको पता है यार, एक्शन रिएक्शन है. सबसे पहला एग्जांपल, रॉकेट. रॉकेट ग्राउंड पे कुछ फोर्स अप्लाई करता है, और इन कॉन्ट्ररी ग्राउंड रॉकेट पे फोर्स अप्लाई करता है. तो इस प्रकार से रॉकेट उड़ जाता है. ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल. सेकंड, बाउंसिंग बॉल. बॉल ग्राउंड पे अगर फोर्स अप्लाई करता है, ऑन कॉन्ट्ररी ग्राउंड ऑल्सो अप्लाई सम फोर्स ऑन बॉल. और जैसे मैंने बताया, स्विमिंग, आप पानी को पुश करते हो, पानी आपको पुश करता है. सो इस प्रकार से आप स्विमिंग करते हो, आप नीचे डूबते नहीं हो. बाद में फ्लाइंग बर्ड. बर्ड हवा को पुश करता है, हवा बर्ड को पुश करता है. तो इस हिसाब से दिस वाज द एप्लीकेशन फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक क्लियर है क्या? यस. सो अभी इन सब चीजों में ये फोर्स क्या होता है, हम ये समझते हैं. भाई ये कौन है? नहीं भाई, कोई फोर्स नहीं बोला. कोई फोर्स बोला क्या? नहीं नहीं, आपका कोई जरूरत नहीं, कोई फोर्स नहीं बोला. ओके, सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स को अभी डिफाइन करते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, अगर अभी जस्ट इमेजिन करो कि मेरे सामने कोई बॉल है. ओके, बॉल अभी रेस्ट पे है. ओके, सो मैं अगर किक मारूंगा तो मैं फोर्स करूंगा, तो फोर्स लगाए तो बॉल उसका मोशन स्टेट चेंज करेगा. तो पहले वो रेस्ट में था, वो फिर बाद में मोशन में आएगा. तो फोर्स क्या है? Physical quantity which changes or tends to changes the state of motion of any object when it is applied. Okay, so force क्या करता है? चेंज करता है, चेंज करने की कोशिश करता है. किसको रे? किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को. ओके, अगर कोई बॉल आ रहा है आपके पास, आप उसको कैच करते हो, आप क्या करते हो? उसको मोशन से रेस्ट में लाते हो, तो उसके लिए कुछ फोर्स लगता है ना. सो फोर्स के लिए अभी तीन प्रॉपर्टीज है. ओके, फोर्स की तीन प्रॉपर्टीज है. सबसे पहला है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब क्या? फोर्स का कितना स्ट्रेंथ है. ओके, फोर्स का कितना स्ट्रेंथ है. ओके,
स्ट्रेंथ के बाद आता है डायरेक्शन। अभी किस डायरेक्शन में आप अप्लाई करते हो? आप अभी किसी के मुंह पे मुक्का मार रहे हो, या किसी के पेट में मुक्का मार रहे हो, या किसी बॉल को किक कर रहे हो आप, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ। अगर कोई कड़का आदमी किसी मोटे आदमी को मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? बिकॉज स्ट्रेंथ भी कम है बट डायरेक्शन है। बट कोई मोटा आदमी किसी कड़के बंदे को मारेगा तो लगेगा ना, क्यों? बिकॉज स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। प्लीज प्लीज अपना ऑडियो प्लीज बंद कीजिए। यस। उसके बाद में आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सब लोगों ने अभी कबड़ को मूव किया रहेगा। क्या होता है कबड़ को मूव करने के बाद? आइदर कबड़ स्लाइड होता है, घिसता है नीचे से और मूव होता है, या टॉपल होता है। सो आप अगर उसको नीचे से पुश करोगे तो स्लाइड होएगा, बट ऊपर से पुश करोगे तो वो ऐसे टॉपल हो जाएगा। ओके, इसको टॉपलिंग बोलते हैं। मतलब क्या? गिर जाता है, गिर जाने का ट्राई होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्स के बारे में जान लिया। ओके, मोशन, लॉज ऑफ मोशन के रिलेटेड फोर्स आए। तो जैसे ही फोर्स आया और न्यूटन भी है तो साइमल्टेनियसली चलो एक और चीज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, इसको थोड़ा अभी फटाफट कर लेता है। नो द लेक्चर टाइम इज बीइंग एक्सटेंडेड। ओके, बट वी वांटेड टू नो सर व्हाट आर फोर्सेस। तो सबसे पहला फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज अपने को नीचे गिराती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की वजह से जो फोर्स आता है, सब लोगों ने मैग्नेट के साथ खेला रहेगा, मैग्नेट की वजह से आने वाला फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये सबको ज्यादा पता नहीं रहेगा, बट जो लोगों ने रेडिएशन के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा रहेगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, तो ये फोर्स उनमें आता है, रेडियो एक्टिविटी में आता है। आप लोग अभी 11th और 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ओके, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो आप लोगों ने ये देखा रहेगा, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में ये सारे चीजों को बॉन्ड कौन करके रखता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो ओके, देयर इज अ फोर्स विच बॉन्ड्स ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, उसके बाद में अभी ये क्लासिफिकेशन कौन सा था? पहला था ऑन स्ट्रेंथ बेसिस। उसके बाद में अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब फोर्स को कोई ना कोई ओरिजिन होना चाहिए, कहीं ना कहीं से फोर्स को आना चाहिए। तो एक फोर्स जो रियल फोर्स, देखो सस्पेंशन है, गाड़ी का सस्पेंशन होता है, तो उसमें फोर्स किसके वजह से आता है? व्हील किसके वजह से फिर से नीचे आ रहा है? स्प्रिंग के वजह से। तो स्प्रिंग के वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो दैट इज रियल फोर्स। बट उसके बाद में अभी ये देखो, ये कुछ बंदे मस्ती कर रहे मेरी गो राउंड के साथ। तो मेरी गो राउंड में वो बंदा अचानक से गिर गया बाहर, कोई फोर्स ने पुश किया क्या उसको? यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्यों पुश किया? बिकॉज दैट सूडो फोर्स, वो फोर्स का कोई ओरिजिन नहीं है। एंड आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो तो नीचे सरफेस पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता है, तो दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, सो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और उसी तरीके से अगर आप मैग्नेट से खेलोगे, मैग्नेट के बीच में कोई मीडिया नहीं होता, तो वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो गाइस, फाइनली न्यूटन्स लॉ क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two bodies is directly proportional to the product of the masses and square of distance between them. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो न्यूटन ने ये भी लॉ स्टेट किया भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी ये मैथमेटिक्स का फंडा है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हो तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, उसको मैंने जी करके डाला। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसका कुछ वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर। Not understanding classification based on frame. Okay. No issues. Okay. No issues. I'll explain it to you again. Okay. Classification based on frame of reference. अब ये frame of reference क्या होता है? Okay, guys, just a second. Let me see whoever I have doubt. Not understanding the classification based on frame of reference and contact, non-contact. Okay. सो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है सर? ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ओरिजिन, किसी ना किसी फोर्स को आने के लिए उसका सोर्स लगता है। ओके, सो मैंने
इसमें एक आपको फोटो दिखाया था, देखो फोटो देखते जरा, बराबर है। देखो फोटो में स्प्रिंग के वजह से फोर्स आ रहा है, बराबर है। फोटो में स्प्रिंग के वजह से फोर्स आ रहा है। ओके, सो देयर इज अ फिजिकल सोर्स ऑफ फोर्स, सो दैट इज नोन एज रियल फोर्स। ओके, सो जिस फोर्स को सोर्स होता है, जिस फोर्स को सोर्स होता है उसको हम लोग रियल फोर्स बोलते हैं। ओके, सो यहां पे स्प्रिंग इज द सोर्स, स्प्रिंग इज द सोर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रियल फोर्स। ओके, इसी के बाद में, जस्ट अ सेकेंड, इसी के बाद में आप ये देख रहे हो मेरी गो राउंड में आप बाहर तो गिरते हो बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई सोर्स ही नहीं है, वहां पे कोई फिजिकल सोर्स ही नहीं है। सो वो फोर्स एग्जिस्ट होता है बट उसको कोई सोर्स नहीं है। ओके, सो ऐसी फोर्सेस को हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स फोर्स। ओके, फॉल्स फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब है फॉल्स फोर्स, फोर्स है बट उसका कोई ओरिजिन नहीं है। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? मतलब कोई ओरिजिन होना चाहिए। सो जिस फोर्स को ओरिजिन है, जैसे पहले वाले एग्जांपल में स्प्रिंग था, स्प्रिंग इज द ओरिजिन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कोई ओरिजिन ही नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? क्या है सूडो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रेम? प्लीज से यस और नो। Yes. ओके, दिस समीधा नाइक। ओके, ओके, सो इसके बाद में हम लोग आगे क्या बढ़े थे? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। अभी जिन बॉडीज में कॉन्टैक्ट होता है, उस कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स आता है ना, दैट इज फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी देखो, एक ये बंदा बॉक्स को स्लाइड कर रहा है, तो ये बॉक्स और ग्राउंड दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। इट इज अपोजिंग द मोशन। हम लोगों ने वीडियो में भी देखा रे, वीडियो में जैसे वो बॉल नीचे गिरता है वो स्टॉप हो जाता है। वाई? बिकॉज वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आया, तो कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स एक्सर्ट हुआ। अभी एक और नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेट। मैग्नेट में आपको कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे आप मैग्नेट नजदीक लाते हो अपने आप आयरन पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं उसको, तो उसमें वो कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होता, दैट इज ड्यू टू नॉन कॉन्टैक्ट। ओके, सो आर एग्जांपल्स क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज से यस और नो। ओके, ओके, सो मूविंग अहेड, ये भी लॉ हम लोग पढ़ चुके, न्यूटन्स लॉ। आई रिपीट, क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them. So F is proportional to m1 m2 by r square. इनवर्स है तो डिवाइड होएगा, डायरेक्ट है तो मल्टीप्लाई होएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला मैं और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डाला। ओके, सो इसका एक्सपेरिमेंटल ये वैल्यू निकाला है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड दिस इज द यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये यूनिट कैसे आया? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, रेडियस का है मीटर स्क्वायर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जी को मैंने एक ही साइड पे रखा और m1 m2 नीचे आ गया, दोनों मासेस है तो केजी स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज हाउ गाइज we end the session. Thank you very much for patiently hearing whatever I have been said in the lecture. Thank you very much. So we are ending the lecture here. Please let me know anybody has any doubt regarding the laws of motion or force or gravitation. Okay, that's good to hear that आप लोग को कोई डाउट्स नहीं है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और कोई डाउट आपके दिमाग में स्ट्राइक होता है, प्लीज लेट मी नो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। इट वाज आल्सो वेरी नाइस लेक्चर। ओके, किसी ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इट। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, now you can leave. Okay, guys, now you can leave.